کل نفس ذائقۃ الموت سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق آقا مدینہ سرور قلب و سینہ حضور اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ ایک والدہ ماجدہ مرحومہ کے چہلم کے موقع پر 40ویں کے موقع پر چہلم شریف کے موقع پر برائے ایصال ثواب، برائے دعائے بخشش و نجات یہاں حاضر ہوئے. بے شک بے شک. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار بعد مردن، بعد انتقال، مذہب اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. بے شک بے شک. جب تک انسان زندہ رہتا ہے، صاحب ایمان زندہ رہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کو ادا کرے. بے شک بے شک. ماہ رمضان شریف آئے، روزے رکھے. بے شک. اللہ رب العزت اسے صاحب نصاب بنا دے، مالدار بنا دے. 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنا مال تجارت کا اسے مالک بنا دے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. بے شک بے شک. ویسے اب زکوٰۃ یاد آئے گی لوگوں کو. بولے بھائی اب زکوٰۃ یاد آئے گی لوگوں کو، ٹیکس کٹے گا نا. سوچے گا آدمی یار گورنمنٹ کو بھی تو دے ہی رہے ہیں، پر بھی تو زبردستی کی زکوٰۃ ہے نا. یہ تو مودی نے جو نکالی ہے ڈنڈے کی، ہاں یہ تو ڈنڈے کی ہے. تھوڑا بہت رحم ضرور انشاءاللہ پیدا ہوگا، ورنہ بڑے بڑے کرشتید ہو گئے تھے، خزانوں کو دبائے پڑے تھے، زکوٰۃ کا نام و نشان تک نہیں. بے شک بے شک. قسم خدا کی اللہ نے مسلمانوں کو اتنی دولت سے نوازا ہے، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دیں تو ہندوستان تو کیا دنیا کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. طریقے کے ساتھ میں زکوٰۃ نکال دیں. بے شک بے شک. آپ کی نالج میں مراد آباد میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ بولے بھائی آدھے تو ہوں گے. کتنی آبادی ہے اپنے شہر کے اندازہ؟ کئی لاکھ ہوگی. 20 لاکھ کی آبادی ہے. 10 لاکھ مسلمان مان لیجئے. کتنے؟ 10 لاکھ مسلمان مان لیجئے. اب 10 میں سے چلو 5 لاکھ کو ایک طرف کر دو، 5 لاکھ کو ایک طرف کر دو، زکوٰۃ کو چھوڑو ایک طرف، صرف رمضان شریف میں عید کے موقع پر فطرے کا حساب لگا لو.
बेशक बेशक एक आदमी का इस वक्त बैठ रहा है 40 रुपए, बेशक बेशक क्योंकि 20 रुपए किलो गेहूं है, और अगर आटे के हिसाब से निकालोगे तो बैठेगा 51 रुपए। आटा 25-26 रुपए किलो है, बेशक 2 किलो का कम से कम निकालोगे। अब फी कस एक आदमी 50 रुपए के हिसाब से फितरा अदा करे तो अरबों रुपया शहर मुरादाबाद का फितरे का बन जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और ये गरीबों को तकसीम किया जाए, बेशक क्योंकि फितरा ज़कात एक ऐसा माल है कि न मस्जिद की इमारत में लग सकता है, न मस्जिद के किसी खर्चे में लिया जा सकता है। हद तो यह है कि मदरसे की भी इमारत में नहीं लग सकता। बेशक बेशक ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, मोहताजों का हक है। बेशक बेशक और इसमें डंडी हमारे मौलवियों ने भी मारी है, बेशक बेशक क्योंकि सच्ची बात कड़वी होती है। हमारे हजरत को छोड़कर हजरत कभी इस बात को नहीं बताते थे, खाली मदरसे को तो मौका बमौका बताया करते थे। गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को अदा करो। मौलवी तो खाली अपने मदरसे के लिए, बेशक ज़कात दो तो मदरसे के लिए दे दो, सदका फितरा दे दो तो मदरसे के लिए दे दो। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं कि अगर पड़ोसी गरीब है तो उसे दो, बेशक बेशक भाई गरीब है तो उसे दो, बेशक मोहताज गरीब है तो उसे दो, सामने मोहताज है उसे दो, परेशान हाल है उसे दो, बेवा को दो। मोहताम याद रखो, जब एक ईमान वाला अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है तो अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये मोदी का जो अजाब नाजिल हुआ है, ये खता है हमारी। बेशक बेशक हक बात। ये मोदी एक अजाब है। बेशक बेशक बोलो भाई, बेशक बेशक हक बात। मोदी जो है ये अजाब है। हमारे आगे अजाब है हमारे। जब हमने अपने माल से उस गंदगी को अलहदा नहीं किया, अरे जब हम कपड़ा पहनते हैं, 1 दिन पहनोगे, 2 दिन पहनोगे, 3 दिन पहनोगे, जाड़े में 4 दिन पहन लोगे, गंदा हो जाएगा, धोगे कि नहीं धोगे? बेशक बोलो भाई। बेशक उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब के लिए नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परेशान हाल के लिए नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहताज के लिए नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात का टैक्स जो लगाया है आपके मकान पे नहीं लगाया। आपका मकान 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, मकान के ऊपर कोई ज़कात नहीं, बेशक बेशक क्योंकि वो आपकी जरूरत की चीज है, बेशक उससे आप कमाई नहीं कर रहे हो, वो तो सिर्फ आपके रहने की चीज है। बेशक। आपके पास औजार हैं, चाहे वो आपके औजार करोड़ों को पहुंचते हो, उसमें ज़कात। आपकी सवारी के घोड़े हैं, सवारी की मोटरसाइकिल है, सवारी की कारें हैं, चाहे उसकी कीमत करोड़ों को पहुंचती हो, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। आपके पास खिदमत के नौकर हैं, गुलाम हैं, चाहे उनकी कीमत अरबों करोड़ों खरबों अरबों को पहुंचती हो, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। अल्लाह ने ज़कात जो रखी है उस माल में रखी है जो माल बढ़ता है, बेशक बेशक सुभान जिसे कहते हैं माले तिजारत। बेशक आपका मकान है 1 करोड़ रुपए का है, 50 लाख का है, कोई ज़कात नहीं, लेकिन आपने एक छोटा सा मकान 10 लाख का, 5 लाख का लेकर डाल दिया और ये सोच के कि जब थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे, उसमें ज़कात है। बेशक क्यों? इसलिए कि वो आपने रहने के लिए नहीं लिया, वो आपने तिजारत के लिए लिया है, बेशक। वो आपने मुनाफे के लिए लिया है। आपके घर के बर्तन हैं, कितनी ही कीमत को पहुंचते हैं, आपकी जरूरत का सामान है, कितनी ही कीमत को पहुंचता है, कोई ज़कात नहीं है। अरे ज़कात तो अल्लाह ने उसमें रखी है जो माल बढ़ता है, बेशक जो माल बढ़ता है। इसीलिए भेड़ और बकरियों पर ज़कात उन पर है जो साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर चुग के गुजारा करती है। बेशक आपने बकरी पाल रखी है और पूरे साल अपने थान पर अपने घर बैठकर आप उन्हें सानी खिलाते हैं, बरसीन खिलाते हैं, पहले से मोल लाकर खिलाते हैं, उसमें ज़कात नहीं है। बेशक तो शरीयत ने हर काम को हिसाब से रखा, शरीयत ने मजबूर नहीं किया, शरीयत ने मजबूर नहीं किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहतरम सामिईन किराम, आज हम और आप
सही तरीके से माले ज़कात को अदा करें तो कोई मुसलमान भीख मांगता नजर नहीं आएगा, कोई परेशान नजर नहीं आएगा, कोई बेवा परेशान नजर नहीं आएगी, कोई मोहताज परेशान नजर नहीं आएगा, कोई मुफलिस नजर नहीं आएगा, कोई गरीब नजर नहीं आएगा। अरे इस्लाम ने भीख मांगने को बहुत बुरा करार दिया। मेरे आका फरमाते हैं कि फाका कर लो, आगे हाथ मत फैलाओ, इसलिए कि हाथ जब आप फैलाओगे तो इस्लाम इसे पसंद नहीं करता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जो तरीका हमारा था वो गैर मुस्लिम अपना रहे, बेशक जो उसूल हमारे थे वो गैर मुस्लिम अपना रहे हैं। इसीलिए शरीयत मुताहरा ने 4 माशे तक की नगदार चांदी की अंगूठी पहनने का हुक्म मर्द के लिए जायज करार दिया। बेशक मर्द 4 माशे तक, 4 माशे के वजन तक नगदार चांदी की अंगूठी पहन सकता है कि अगर कहीं जेब कटी गई, बोलो भाई, घटिए तो अजमेर शरीफ में भी मौजूद है और वहां काटते हैं जहां बिल्कुल रोजे की चौखट है कि है तो बस ख्वाजा साहब में फना ही हो जाएगा ये भाई मौका अच्छा। भाई हर जगह जेब को संभालेगा, उनके दरबार में तो ये सोचेगा कि लेने आया हूँ, वहां तो बेफिक्र हो ही जाएगा, लेकिन कैसी वही मार देगी रह कर कटी गई जेब, हो गए आप परेशान, तो शरीयत ने तरीका बताया, भीख मत मांग, अपनी उंगली की अंगूठी निकाल के बेच ले, एक वक्त तो चली जाएगा, एक वक्त खा लेगा, एक वक्त की बर्दाश्त कर लेगा, इधर घर पहुंची जाएगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात आई थी तो मैं अर्ज कर रहा था, दीदाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जब तक जिंदा हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नमाज वक्त पर अदा करें, माह रमजान शरीफ आए रोजा रखें, अल्लाह ताला मालदार कर दे, ज़कात अदा करें, और ज्यादा मालदार हो जाए जिसे कहते हैं साहिबे इस्तिताअत, तो अल्लाह का घर जाकर देखें, जिसे कहते हैं हज्जे बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह अकबर। यह हमारी जिंदगी में हमारे जिंदों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल हो जाए, जैसे हमारे आली जनाब इज्जत पा मोहतरम सरताज हुसैन साहिब की वालिदा माजिदा का इंतकाल पुरमलाल हुआ, तो मज़हब इस्लाम अब हमें तरीका देता है, अब हमें उसूल देता है, अब हमें कानून देता है। क्या हो गया उन लोगों को जो इस्लाम का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, और तीजे 10वें 20वें 40वें तिमाही छमाही बरसी जुमेरात की फातिहा, ईद की फातिहा, बकरीद की फातिहा, शब बैत की फातिहा पर रुकने के लिए, रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे। बेशक बेशक अरे कम से कम मजहब इस्लाम का मिजाज ही समझ लिया जाता। मजहब इस्लाम क्या मिजाज रखता है? मजहब इस्लाम ये मिजाज रखता है कि जब तक जिंदा रहो अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाओ, नमाज के पाबंद, रोजे के पाबंद, हज की अदायगी, ज़कात की अदायगी रखो, और जब किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल हो जाए तो मजहब इस्लाम जिंदों से, वारिसों से, अहले महल्ला से, घर वालों से मुतालबा करता है कि बगैर मगफिरत की दुआ किए दफन भी मत करना। बेशक जिसे कहते हैं नमाज जनाजा। बेशक बेशक क्या कहते हैं भाई? नमाज जनाजा क्या है? दुआई तो है मगफिरत की। बेशक अगर ऐसा कुछ होता तो जैसा किया वैसा भरेगा। अब नियाज क्या करेगी और फातिहा करेगी तो हम कहने के लिए तैयार हैं, नकल कुफ्र नबाशत, फिर नमाज जनाजा भी क्या करेगी? बेशक भाई तो मरने के बाद नियाज कुछ नहीं कर सकती, तो नमाज जनाजा नमाज क्या करेगी? जो काम नमाज जनाजा करेगी वही काम तीजे की फातिहा भी करेगी, 10वें की फातिहा भी करेगी, 20वें की फातिहा भी करेगी, 40वें की फातिहा भी करेगी। अरे तिमाही की फातिहा भी वही काम करेगी, और छमाही की फातिहा भी वही काम, बरसी की फातिहा भी वही काम करेगी। और तिमाही छमाही चेलोम, ये अहले सुन्नत व जमात में आज कोई मामला खत्म थोड़ी हो रहा है 40वां कर गए। अरे हमारा तो जब जब जुमेरात होगी 40वां होगा। ये तो औरों की बात है, हमारा हिसाब। बोले मियाँ तीजा कर रहे हो, तीसरे दिन 3 दिन तक क्या होगा? अरे हमारा जो कुछ होगा 3 दिन के बाद तो वो तो हो ही जाएगा। तू बता, तेरा तो हो नहीं, तेरा क्या होगा? तेरा होगा क्या? बोलो भाई हमारा तो हिसाब लगा रहे 3 दिन का, और तेरा तो सुतलों से ही नहीं होगा। सुतलों से तेरा साफ है, तेरा तो होना ही नहीं। भाई चलो अगर सख्ती रही तो 3 दिन रही, तीसरे दिन तो अमान मिल ही जाएगी। हमारा हिसाब 3 दिन का लगा रहा है। ये तो जब होता कि तू दूसरे दिन करता कि तो हम 1 दिन पहले करते, तुम 3 दिन में करते हो, हम दूसरे दिन करते, तो कहना दुरुस्त होता।
अब तू तो ना पहले दिन करे, ना दूसरे दिन करे, ना तीसरे दिन करे, ना चौथे दिन करे, और हिसाब हमारे तीसरे दिन का लगा रहा है कि मियाँ इंतकाल हुआ है आज, 3 दिन तक क्या होगा? अरे 3 दिन तक यह होगा कि जब कब्र में एक ईमान वाला जाएगा और आका का दीदार होगा तो आका के दीदार में इतना मुस्तगरक होगा कि नमाज जनाजा का सवाब उसे मिलता रहेगा, का सवाब उसे मिलता रहेगा। ये 3 दिन की बातें हाजी साहब तीजा कहते हैं, ये तो मुजतमे तरीके पर है। हमारे यहाँ तो न्याज रोज होती है। बोलो भाई, रोज होती है। कब्र पे जाएंगे तो नियाज पढ़ के आएंगे, जब जाएंगे नियाज पढ़ के आएंगे, घर आएंगे तो घर नियाज और फातिहा देंगे, अगर मेहमानों को खाना खिलाएंगे तो पहला फातिहा देंगे, बाद में खाना खिलाएंगे। दूसरा दिन आएगा तो ऐसा नहीं है नियाज और फातिहा छोड़ देते हैं, उस दिन भी फातिहा देते हैं। लगातार 40 दिन तक फातिहा होती ही रहती है। जुमेरात आती है तो फातिहा होती है, शब बरात आती है तो फातिहा होती है, ईद बकरा ईद आती है तो फातिहा होती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहतरम सामिईन किराम, आप अगरचे मौलवी ना सही, मुफ्ती ना सही, मुहद्दिस ना सही, लेकिन इतनी खोपड़ी तो जरूर रखते हो। अगर आपसे कोई ये कहां से साबित है और तीजे का फायदा क्या है तो उससे कहते कि ये बता नमाज जनाजा का फायदा क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूछोगे उससे? नमाज जनाजा का फायदा क्या है? अब वो कहते नमाज जनाजा मगफिरत की दुआ है, उससे मय्यत को फायदा पहुंचेगा। तो तीजे में 40 में कोई गरीब की जाएंगे? बोलो भाई, ये बात तो बताओ भाई। अगर तीजे में 10वें में 20वें में गालियां बकी जाती तो तुम कह सकते थे यार नमाज जनाजा में अच्छा कलाम पढ़ा गया, अब तुम गालियां बक के उस सवाब को बेकार क्यों कर रहे हो? अरे जिस तरीके से नमाज जनाजा में मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाती है, उसी तरीके से बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से, क्योंकि वहां पर शरीयत की पाबंदी है और कुछ नहीं पढ़ सकते। नमाज जनाजा में कुल नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ते हो अलहम शरीफ? नमाज जनाजा में अलहम शरीफ पढ़ते हो? और फजर की नमाज में, जोहर में, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, सब में अलहम्द शरीफ पढ़ा जाता है। और नमाज जनाजा में अलहम्द शरीफ नहीं है, वो आका के हुक्म की पाबंदी है, वो शरीयत की पाबंदी है, उसमें अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अलहम्द कुरान करीम है, कुल शरीफ कुरान करीम है। हर जगह देसी घी काम नहीं करता, कहीं तेल भी काम करता है। बोलो भाई, अगर मछलियां भूनोगे तो देसी घी में भूनोगे, तेल में? बताओ। मछलियां अगर कितनी भी तेल में, उसमें देसी घी में भून लियो, मजा नहीं आ सकता जब तक तेल का तड़का नहीं लगेगा। बोलो भाई, तो मछलियों की हराम मारने के लिए तेल के तड़कन की जरूरत है। कोई कहे यार इतने मालदार होकर घी में नहीं भूनी तुमने। अबे बेवकूफ, तुझे क्या पता, इसकी हराम जो जाएगी, इसकी जो बू है वो जो जाएगी, वो तेल से जाएगी, घी से नहीं जाएगी। बहुत से जाहिल कहते, बोले मियाँ अहदनामा कब्र में रखते हो, इससे तो कुरान ही रख दो। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उससे पूछो नमाज जनाजा में कुरान क्यों नहीं है? बेशक हमसे अहदनामे का हिसाब पूछ लिया। बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि अहदनामे से अगर अजाब दूर हो जाएगा तो फिर पूरा कुरानी क्यों ना रख दो? अब उससे पूछो, अबे हर जगह कुरानी काम थोड़ी करता। बोलो भाई, कहीं हदीस काम करती है, कहीं सहाबा के अक़वाल काम करते हैं। बोलो भाई, अल्लाह ने निजाम बनाया है, अल्लाह ने तरीका बताया है, अल्लाह ने उसूल बताया है। अल्लाह अकबर। हमसे पूछ लिया कि कुरान क्यों नहीं रखते? मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उससे तो पूछो नमाज जनाजा उसमें से कुरान क्यों निकाल दिया? उसमें कुरान नहीं है, बल्कि जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस पे दरूद है। नमाज जनाजा में मेरे आका ने कुरान करीम की तिलावत को नहीं रखा, इसलिए कि नमाज जनाजा का तरीका जो है वो मेरे आका ने मरहमत फरमाया है, और वो भी मग़फ़िरत की दुआ है। ऐसा न वैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नमाज जनाजा को फर्ज करार दिया कि ऐसे भी अगर तीजा भी नहीं करोगे, 10वां भी नहीं करोगे तो लाइन में लगना जरूर पड़ेगा। नमाज जनाजा तो पढ़ोगे। बोलो भाई, नमाज के नाम पे लोगों को धोखा देने वालों, नमाज जनाजा तो जरूर पढ़ोगे, लेकिन उनसे पूछो कि जब नमाज है तो
نماز تو الحمد سے ہوتی ہے، نماز تو قل سے ہوتی ہے، نماز تو قرآن کی آیتوں سے ہوتی ہے. ارے اس کا نام نماز رکھا ہے لیکن اس میں الحمد نہیں ہے، اس میں قل نہیں ہے. اللہ اکبر اس میں ہے تو کیا؟ اللہ کی سبحانہ سے تعریف کی جاتی ہے اور بعد میں پیارے آقا پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں دعا مانگی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ سے قرآن تو ہٹا ہے لیکن صاحب قرآن نہیں ہٹا ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے دنیا سے جا رہا ہے، اگر ڈائریکٹ خدا سے ملنے کی کوشش کرے گا تو نہ پڑھنے پر پٹائی ڈائریکٹ شروع ہو جائے گی. بولو بھائی، اگر روزہ نہیں رکھا تو ڈائریکٹ پٹائی ہو جائے گی. اور اگر آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آقا پہ درود و سلام پڑھ لیا تو آقا رحمت للعالمین ہے. آقا رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمومنین نہیں کہا. آقا کو رحمت للمسلمین نہیں کہا بلکہ آقا کو کہا تو رحمت للعالمین. آقا رحمت عالم بن کر آئے ہیں. اے نماز پڑھنے والوں، نماز جنازہ میں میرے محبوب پہ درود پڑھ لو، تمہارا بھلا ہو جائے گا. آقا کا درود پڑھ لو، بھلا ہو جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، تو محترم سامعین کرام، میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ حساب سے کام کیا جاتا ہے اور ہر جگہ جو جس کام کی چیز ہوتی ہے وہی استعمال کی جاتی ہے. بولو بھائی، اگر ایسا کوئی قانون ہوتا کہ مرنے کے بعد میں نیاز و فاتحہ کیا کرے گی تو نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہوتی. نماز جنازہ کا پڑھنا ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ 3واں 10واں 20واں 40واں یہ سب مغفرت کی دعاؤں کا ذریعہ ہے، بخشش کی دعا کا ذریعہ ہے. جس طریقے سے نماز جنازہ مرنے والے کے لیے، مرنے والی کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طریقے سے 3واں 10واں 20واں 40واں بھی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے محترم سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ضمنی طور پر پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حدیث کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے کہ عالم نہیں ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے عالم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چند ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ ہر مخالف 3واں، مخالف 10واں اور مخالف 40واں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہو اور ایک ہی جواب ایسا ہوگا کہ 100 سنار کی اور ایک بالکل برابر بیٹھے گی. اگر کوئی آپ سے کہے کہاں ہے اس کا ثبوت تو ڈائریکٹ کہنا قرآن سے. ابھی قرآن کو تو مانے گا نہیں مانے گا قرآن کریم کو. بولو بھائی، قرآن کریم کا خطبہ پڑھنے والا ہے، قرآن کریم کو مانے گا. کہا قرآن سے ثابت ہے. وہ کہا کون سی آیت تمہیں؟ تو پھر صرف اتنا بتا دینا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، قرآن کریم کی آیت کا ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن کریم کے 15ویں پارے کی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اسٹارٹنگ میں آیت کے شروع میں اپنی عبادت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور حکم فرمایا، فیصلہ فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ لوگوں نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کوئی بھی مومن، کوئی بھی صاحب ایمان خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان مومن سے ہر گناہ کرا سکتا ہے لیکن شیطان مومن سے شرک نہیں کرا سکتا. بے شک بے شک. کیوں؟ شرک اور ایمان ضد ہیں. جو مشرک ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا. شرک سے ایمان چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور حکم فرمایا آپ کے رب نے محبوب نہ عبادت کرو اے لوگو مگر اللہ کی. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. کیا کرو؟ اب ہمارے سرتاج بھائی بھورے بھائی کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے حق میں یہ 40واں
ان کے ایصال ثواب کے لیے 40 ماہ ہو رہا ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے، درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ کا ورد بھی کیا جا رہا، قرآن کی تلاوت بھی ہوئی ہے. بتاؤ یہ ان کے حق میں اچھا کیا جا رہا ہے یا برا؟ اچھا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تو بتاؤ امی کے لیے بھلائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولو بھائی. تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق اگر کوئی تیجے میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں، تمہائی چھمائی برسی جمعرات کی فاتحہ، شب برات، عید و بقرعید کے موقع پر اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے ایصال ثواب کی دعا مانگ رہا ہے تو وہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تو صاحب تفسیر روح البیان بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے 2 پہلو ہیں، 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب ماں باپ حیات ہوں، والدین زندہ ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے ان کے ساتھ بھلائی کرو. بولو بھائی. ہرگز اور ہرگز ایسا نہ کرو. گاؤں میں عام طریقے سے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک کو گھر کہا جاتا ہے اور ایک کو کہا جاتا ہے بورے بھائی گھیر. کیا کہا جاتا؟ گھیر. گھر میں فیملی رہتی ہے، بچوں کی، لڑکوں کی بیویاں وغیرہ رہتی ہیں، اور گھیر میں بھینس ہیں، کٹرے، بیل یا کوئی آیا گیا مہمان ہے وہ رہتے ہیں. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر پہنچ جائیں ان دونوں میں کا ایک بڑھاپے کو، ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امی ریٹائر ہو گئی، ابا میں گنجائش ہے. بولو بھائی. کبھی اس کا الٹا ہو جاتا، ابا ریٹائر ہو گئے، ماں میں گنجائش ہے. تو قرآن کریم نے دونوں پہلو بیان کیے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہاری سامنے، تمہاری جوانی میں، تمہارے نزدیک، تمہارے ہوتے ہوئے دونوں میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یہ دونوں کے دونوں ساتھ ریٹائر ہو جائے، دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا، ڈپٹنا، کرری نگاہ سے دیکھنا، یہ تو بہت بڑی جرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہو. ماں باپ کو اف تک. اف کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ امی نے کہا بیٹا پانی لا دیو، یہ ہے اف کا ترجمہ. آپ نے کتنا کہہ دیا؟ تو یہی پڑھی رہے. تو قرآن کریم نے اس کو بھی منع فرمایا فلا تقل لہما اف، ارے انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، نہ انہیں ڈانٹو ڈپٹو جھڑکو، وقل لہما، اور ان کے لیے جو تم بات بولو قولاً کریما، تو عزت والی بات بولو. امی جان کہہ کر بولیے، امی بزرگوار کہہ کر بولیے. بولو بھائی. بڑھیا یا بڈھا کہہ کر ماں باپ کو مت بولو. بڑا بڑا بدتمیز پڑا ہے اس زمانے میں. اے بڑھیا چپ بیٹھی رہی ہے، دھاڑ دیسی کہہ دے. اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدل لیا. جب پڑوسی نے ایک دیا ماں باپ کو تو دوسرا 2 دینے تیار. بڑی بڑی کمیٹیاں بنی، ایسی کمیٹی کوئی نہیں بنی آج تک کہ اگر کوئی بوڑھے ماں باپ کو ستائے تو اسے بھی سزا دینی چاہیے. دھیرے دھیرے حکومت اس طرف دھیان دے رہی ہے. بولے زبردستی اولاد ماں باپ کے مال کو نہیں لے سکتی. کئی بار اخبار میں آ بھی چکا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اولاد پٹے پہ ہوتی ہے، ماروں گا توڑوں گا، مکان تو میرا ہی رہے گا. بولو بھائی، کوئی پڑوسی تھوڑی لے لے گا. یہ رحم و کرم ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے. ارے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے ہاتھ اور پیر چلنے بند ہو جائے، تو اپنا بچپن یاد کر. جب تو پیدا ہوا تھا تو گوشت کے لوتھڑے کے مانند تھا. اگر چاہتی تو ماں چپکے سے گلا دبا دیتی. اور جب یہ ستاتا نا جوانی میں بوڑھے ماں باپ کو، تو ماں باپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں ایسا پتہ نہ تھا، نہ پیدا ہوتی گلا دے دیتی. بھائی
अरे दुखा दिल और क्या कहेगा। ऐ ईमान वालों, माँ बाप की दुआ भी काम करती है और माँ बाप की बद्दुआ भी काम करती है। मेरे प्यारे इस्लामी बाप की भाइयों, माँ बाप की दुआएं लो और खास कर उस जमाने की दुआएं लो जब माँ बाप की तबीयत खराब हो जाए, वो बुढ़ापे में आ जाए, कमजोरी में आ जाए। हरगिज और हरगिज ऐसा मत करना जैसा गाँव में कर देते हैं। अम्मी को तो सुला दिया घर के बरामदे में, बोलो भाई, और पुरानी दे दी चारपाई और पुरानी दे दिया लिहाफ। जितनी बुढ़िया पुरानी उतनी चारपाई पुरानी और उतना लिहाफ पुराना। कि अगर देखो तो आसमान के तारे नजर आ जाए, बोलो, और अपने आप अंदर कमरे में 1.5 फीट के गद्दे पर लेट रहा। माँ से तो कहते कि तू तो हमारा खाती रहे, और अब्बा को पहुंचा दिया घेर में कि तुम कटरे का खाते रहो। बोलो भाई, भैंसा खोल कर ले जा कोई। और इन बुढ़िया बुड्ढों को एक जगह से अलग कर दिया। ये कौन सी किताब में लिखा? बड़ी किताबें तो हमने भी पढ़ ली, आज तक ये किसी किताब में हमने नहीं देखा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें अलग कर दो। बोलो भाई, अरे खिदमत की जरूरत एक दूसरे को बताओ। जवानी में पड़ती है बुढ़ापे में? जवानी तो कटी जा हंस खेल कूद। जो पुरानी बड़ी नई पुराने जमाने की चोटें होती है बुढ़ापे में दिखाई दे। अब अब्बा घेर में सुला दिए, अम्मा घर सुला दी, अब अब्बा यहाँ तड़प पर, अम्मी यहाँ तड़प रही, अब्बा वहाँ तड़प रही, कोई पूछने वाला। ये तो एसी चला कर कमरे में बंद करके सो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा हिसाबों किताब तो लगाओ। अरे साहिब तफसीर रूहुल बयान इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ बाप जिंदा रहे उनकी खिदमत करो तो ये दुनिया में भलाई करना है, और जब माँ बाप इंतकाल कर जाएं, सरताज भाई ने और इनके और भाइयों ने ये चेहलुम शरीफ अम्मी के लिए किया है, ये काम करो, ये उनके लिए मरने के बाद की भलाई है। ये वालिदैन के लिए मरने के बाद की भलाई है कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, उनके लिए कुरान की तिलावत कराओ, उनके लिए कलमे शरीफ का विर्द कराओ, उनके लिए मिस्किनों को खाना खिलाओ, उनके लिए सदका व खैरात कराओ, उनके लिए मिलाद शरीफ कराओ, उनके लिए जिक्र रसूल कराओ, ताकि उसके सदक़े से माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाए, उनका भला हो जाए। ये बादे मुर्दन, बादे इंतकाल उनके साथ भलाई करना है। तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जिंदा रहें तो जिंदगी में उनकी खिदमत करके भलाई करो, और वो इंतकाल कर जाएं तो ईसाले सवाब करके उनके हक में दुआए मग़फ़िरत मांगो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कहां से साबित है तो सीधी कह देना कुरान से साबित है। कौन सी आयत से? तो इतना तो याद रखोगे, वो बिल वालिदैन इहसाना। इतना सा बता दो मौलाना साहिब, तीजे दसवें को रोकने वालों कि वो बिल वालिदैन इहसाना का मतलब क्या है, तो वो बताएंगे माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म है। तो ये बताओ, हमने कुरान शरीफ पढ़कर, कलमा शरीफ पढ़कर, मिलाद शरीफ करा के अपनी अम्मी के लिए ईसाले सवाब कर दिया, तो ये भलाई हुई है या बुराई? तो सीधा कहेगा कि भलाई है, और भलाई का हुक्म अल्लाह ताला खुद देता। बोलो भाई। तो इस आयत करीमा की रोशनी में अब आप कहोगे तीसरे ही दिन क्यों? अरे भाई, तीसरे दिन तुम नहीं करते, तुम दूसरे दिन कर लो, चौथे दिन कर लो। अगर तीसरे दिन से ही तुम्हें चिढ़ है तो जब मर्जी चाहे जब कर लो। ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुन्नत है। तीसरे दिन बेशक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे का इंतकाल पुरमलाल हुआ तो कुछ सहाबी तीसरे दिन कोई छुआरे लेकर आया, कोई खजूरें लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, और सब प्यारे आका की बारगाह में पेश कर दिया सबने, और आका ने सबको मिलाकर खल्तमल्त करके बना लिया मालीदा। क्या बना लिया? मालीदा बनाकर बाकायदा उसे सामने रखा, और उस पर पढ़ी फातिहा और दुआ मांगी, और दुआ में अपने बेटे का नाम लिया, या अल्लाह इसका सवाब तू मेरे बेटे की रूह को अता फरमा, और उसके बाद में फरमाया कि इसे लोगों में तकसीम कर दो। न ये फरमाया कि यतीमों में तकसीम कर दो, न ये फरमाया मोहताजों में तकसीम कर दो, न ये फरमाया बेवाओं में तकसीम कर दो, ये फरमाया लोगों में तकसीम कर दो। तो लोगों में अमीर गरीब सभी थे। बोलो भाई। हाँ, मसला ये भी है कि ये सदक़े नाफिला अमीर गरीब सब खा सकते, अमीर भी खा सकते हैं, गरीब भी। अमीर के लिए भी सवाब है, मालदार खाएंगे, गरीब खाएंगे, उनके लिए भी सवाब है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तुतिमुत ताम व तक़राउस सलाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं, आका सबसे बढ़िया इस्लाम कौन सा है, सबसे बढ़िया इस्लाम का तरीका कौन सा है? तो मेरे आका ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा सलाम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना। चेहलुम शरीफ का प्रोग्राम, आपने इसमें मदरसे के बच्चों की दावत की,
इन मेहमानान रसूल को बुलाया, और भी आपके 2-4 मिलने जुलने वाले वो भी आए होंगे, उन्होंने भी खाना खाया। तो मोहतरम सामिईन किराम, ये कौन सा काम किया आपने? ये वो काम किया जो आका ने फरमाया कि ये इस्लाम का सबसे बढ़िया तरीका है, लोगों को खाना खिलाना और ज्यादा से ज्यादा सलाम करना। तो मोहतरम सामिईन किराम, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम और आप इस वक्त एक चेलुम शरीफ की महफिल में बैठे हैं। यही साले सवाब की आखिरी महफिल नहीं है। हमारे यहाँ तो जब जब जुमेरात आएगी ईसाले सवाब होगा। सुभान अल्लाह। और जुमेराती पर क्या है? जब जब घर में कोई अच्छी चीज पकेगी तो माँ की याद आएगी, बेशक बेशक। ईसाले सवाब हो जाएगा। क्या मेरे को और पता ईसाले सवाब के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े भैया ही फातिहा देंगे, इमाम साहब ही फातिहा देंगे, मस्जिद के तालिब इल्म भी फातिहा देंगे। हमारी बहन बेटियां जो पाक और साफ हैं, अरे कुछ भी नहीं, 3 मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ लो, 1 मरतबा अलहम शरीफ पढ़ लो, और ये कह दो ऐ मौला हमने जो पढ़ा है इसमें गलतियां हो गई हो माफ कर दे, और इसका सवाब प्यारे आका की बारगाह में पहुंच जाए, उनके सदक़े से सारे नबियों सारे रसूलों की बारगाह में पहुंच जाए, कुल मोमिनीन कुल मोमिनात कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात की बारगाह में पहुंच जाए। या अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारी अम्मी जान को इसका सवाब अता फरमा, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 मिनट भी न लगे, फातिहा हो जाए। बेशक बहन बेटी माँ बहन कोई भी इस फातिहा के काम को अंजाम दे सकती है। बेशक। बाद मौकों पर ऐसा हो जाता है कि हमारी बहन बेटियां खाने को ठंडा कर लेती हैं, अरे अभी न्याज नहीं लगी है, रुक जाओ, अभी अब आएंगे वो न्याज देंगे, ताया आएंगे वो न्याज देंगे, कोई जरूरत नहीं किसी का इंतजार की। हमारी बहन बेटी पाक और साफ की हालत में अपने हाथ से न्याज देकर, अरे जो काम अपने बड़े बूढ़ों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए खुद करोगे वो ज्यादा बढ़िया होगा कि नहीं होगा? बेशक बेशक। दूसरे ने तो पता नहीं नाम लिया नहीं लिया, बोलो भाई है? अरे ऐसी टरका दिया मामला। ये दूसरे को क्या मतलब ज्यादा हमदर्दी का? जो हमदर्दी एक बेटा बाप से या मां से कर सकता है तो गैर करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए शरीयत मुताहरा में ये कानून है, अपनी मस्जिद को अपने हाथ से मिलाओ, तुम्हारा हाथ उसके बदन से भी अलग नहीं होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक सुभान। अरे नमाज भी मग़फ़िरत दिलाती है, रोजा भी बख्शिश कराता है, हज भी बख्शिश कराता है, ज़कात भी बख्शिश कराती है, मस्जिद को गुस्ल देना ये भी तो बख्शिश का जरिया है। बेशक बेशक। लेकिन आज अफसोस सद अफसोस, हमने अपनी बहन बेटियों को मुल्लानी के हवाले कर दिया, वो निलाएंगी, और अपने भाइयों को अपने वालिदैन को अपने क्या कहते हैं जेंट्सों को हमने जो है वो मियाँ जी के हवाले कर दिया कि वही निलाएंगे, हम तमाशा देखते रहते हैं। नहीं नहीं, प्यारे आका फरमाते हैं कि मस्जिद को गुस्ल दो तो नर्म नर्म हाथों से दो, अगर कर हाथ उस पर फेर दिया, टाइट हाथ उस पर फेर दिया उसके जिस्म पर, तो वो ज़बान हाल से कहता है कि निलाने वालों मेरे बदन को जोर से ना मलो, मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए कि जब मेरी रूह निकली है तो मेरा रूमटा दुख रहा। बेशक बेशक। अब ये हमदर्दी या अच्छाई बताओ, बेटा बाप के लिए करेगा या जो पैसों पर निलाना आया वो करेगा? बेटे करे। बेटा ही तो कर सकता है। दूसरे को कहाँ की इतनी हमदर्दी? वो तो अपना कॉलम पूरा करेगा, काम निपटाएगा जल्दी से जल्दी, अपने काम से फारिग होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मोहतरम सामिईन किराम, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी मोमिन या मोमिना का, उसके जनाजे में शिरकत करो, उसके गुस्ल देने में शिरकत करो। कोई नया काम नहीं है, डरते हैं लोग, मियाँ गुस्ल कैसे दिया जाएगा, जैसे तुम नहाते हो जिंदगी में ऐसे दिया जाएगा। लंबे चौड़े नए तरीके थोड़ा ही है, ऐसा लंबा चौड़ा फर्क थोड़ा ही है। कुल्ली की जगह मसरूरों पर फाया फेर दिया जाएगा, नाक को पानी की जगह नाक के नथों पर फाया फेर दिया जाएगा, बाकी वही तरीका है। ये हम जिंदगी में नहाते हैं, पहले दाएं कंधा फिर बाएं कंधा फिर सर पर, पूरे जिस्म पर पानी वुज़ू कराने के बाद में। तो मोहतरम सामिईन किराम, अगर किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल होता है, हम उसके दफन में शरीक हो रहे हैं तो अपनी मग़फ़िरत का जरिया कर रहे हैं। अगर गुस्ल दे रहे हैं तो मग़फ़िरत का जरिया कर रहे हैं, हम कांधा दे रहे हैं तो मग़फ़िरत का जरिया कर रहे हैं। अरे ईमान वाले को नहलाना भी जिंदों के लिए मग़फ़िरत का जरिया है। ईमान वालों के लिए किसी मोमिन या मोमिना के जनाजे को कांधा देना यह भी मग़फ़िरत का जरिया है। अल्लाह अकबर। अब ये बताओ, हमने गुस्ल दे दिया तो हमारी मग़फ़िरत का जरिया हो गया, हमने कांधा दे दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, जिस मोमिन ने, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान या किसी मोमिना के मुस्लिमा के जनाजे को कांधा दे दिया, सुन्नत तरीके से कहते कि पहले दाएं कांधे पर 10 कदम, दाएं कांधे पर, फिर पीछे दाएं पांती पर 10 कदम, फिर बाएं कांधे पर 10 कदम, हो गए 40 कदम हो गए। प्यारे आका की हदीस है जिसका मैटर और मफहूम यह है कि जिस शख्स ने सुन्नत के मुताबिक
किसी मोमिन या मोमिना के जनाजे को 40 कदम कादा दे दिया, कादा हटाएगा भी नहीं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अब ये बताओ, जब कादा देने में इतना बड़ा कमाल, गुस्ल दिलाने में इतना बड़ा कमाल, इसमें के नियादो फातिहा में कितना बड़ा कमाल होगा, तीजे की कुरान खानी में कितना बड़ा कमाल होगा, 10वें की कुरान खानी में कितना बड़ा कमाल होगा। इसलिए मोहतरम सामिईन किराम, अदीरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा मकसद ये होता है कि तकरीर नहीं की जाए बल्कि लोगों को सबक पढ़ाया जाए और सबक उतना दिया जाए जितना याद हो जाए। याद हो बोलो भाई, पूरी किताब बच्चे को दे दो तो याद कर लेगा, पूरी जिंदगी मेहनत करो कभी याद ना करेगा, और तो कभी 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन याद करेगा, याद करके लाएगा। तो ये भी एक सबक के मिसल है जो मैंने चंद बातें आपके सामने बताई, से याद करने की कोशिश करो। और मुझे फख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने जो हमारी वालिदा माजिदा दुनिया से रुखसत हुई है, औलाद को नेक बनाया है। और नेक होने का मतलब यही नहीं कि मेरा नमाजी हो। बोलो भाई, बाड़ेबाजी ऐसा होगा कि नमाज से और डंडी मार भी पूरे होंगे। बोलो भाई, उस नमाज से भी क्या फायदा हो गया? उस बात से भी क्या बात? अरे नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज को अदा करो मरते दम तक, जब तक सांस का डोरा बाकी रहे नमाज ना छूटे। अल्लाह ताला आपको फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा का पाबंद बनाए, और उसी के साथ साथ अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी अदा करो, इशराक भी अदा करो, चाश्त भी अदा करो, अव्वाबीन भी अदा करो, सलातुल तस्बीह भी अदा करो, सलातुल वुज़ू भी अदा करो, सलातुल मस्जिद भी अदा करो, सलातुल सफर भी अदा करो, सलातुल हाजत भी अदा करो, नवाफिल अदा करो, मुस्तहब्बात अदा करो। लेकिन उसी के साथ साथ, नमाज के साथ साथ नेक बनने की कोशिश करो, क्योंकि ये नेकी इंसान को नमाज के साथ साथ करा देती है, बेड़ा पार लगा देती है। तो हमें इस बात पर फख्र हासिल है कि जो जिनका इंतकाल, जिनका ये चेलुम शरीफ है अम्मीजान का, कि उनके एक साहबजादे तो दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं, मदरसा चलाते हैं। बोलो भाई, हमारे सरदार भाई हैं, मदरसा चलाते हैं ज़माने से, और फी सबीलिल्लाह खिदमत, फी सबीलिल्लाह खिदमत करते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं कि हर अमल इंतकाल के बाद में टूट जाता है, उसका सवाब उसे नहीं मिलता, लेकिन एक अमल ऐसा है 3 अमलों में से कि वो इंतकाल के बाद भी फायदा पहुंचाता रहता है। वो क्या है कि अगर मरने वाले ने या मरने वाली ने नेक औलाद छोड़ी, अब वो बच्चे नेक काम करते हैं। मिसाल के तौर पर माँ बाप ने अपनी औलाद को नमाजी बना दिया, वो नमाज अदा करते हैं। हमारे सरताज भाई एक दारुल उलूम चलाते, मदरसा चला रहे हैं। हमारे बूढ़े भाई कारोबार के साथ साथ, अल्लाह अकबर, एक वक्त के मुजद्दिद के दरबार से जुड़े हुए हैं। इनकी भी खिदमत फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर। तो रहमत हक बहाना मिजोयद बहा नमीजोयद, अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना तलाश करती है, कीमत तलाश नहीं करती। कीमत दे कौन सकता? बोलो भाई, कीमत कौन दे सकता? जन्नत की कीमत कोई दे देगा? ना जी ना। ये मकान हमारे बुरे भाई का, ये सरताज भाई का, ऐसा मान लीजिए बुरे भाई का, एक मोटी सी कीमत में 20 लाख 25 लाख कैसे रख लो, 30 लाख कैसे रख लो, 50 लाख कैसे रख लो। लेकिन ये कब है कि मिट्टी की ईंटें हैं, मिट्टी से पकी हुई, पत्थर का पिसा हुआ सीमेंट है, लकड़ी है, ये लोहा है, ये मटेरियल लगा हुआ है। और जन्नत में जो महल मिलेंगे उसकी ईंटें सोने की होंगी। तो भाई काय की होंगे? सोने की। और गारा जो बनाया जाएगा वो मुश्को अंबर से, जो तोलों से बिकता, बजरी की जगह हीरे और जवाहरात लगाए जाएंगे। और दरवाजों में, जन्नत के मकानों के दरवाजे में जो चौखट होगी, जो दरवाजा होगा, उसका जो अर्ज होगा, आम तरीके से हमारे दरवाजों की चौड़ाई होती है 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, बड़ा गेट लगा लिया 10 फीट, 12 फीट, और ट्रक दाखिल करने के लिए लगा लिया 20 फीट। लेकिन जन्नत के अंदर जो रूम होंगे, उनमें जो दरवाजे लगे होंगे, एक बाजू से दूसरे बाजू तक जाने के लिए तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल भागेगा। अल्लाह, कितने साल? 500 साल से एक बाजू से दूसरा बाजू हाथ आगा, घोड़ा भागेगा 500 साल। ये तो चौखट की चौड़ाई है, लंबाई कितनी होगी अल्लाह ही जाने। अब जिसमें इतनी बड़ी चौखट लग रही है तो वो कमरा कितना बड़ा होगा? बोलो भाई। और भी ईंटा काय की लग रही है? सोने की। हीरे और जवाहरात की। तो क्या उस मकान की कोई कीमत दे सकता? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहाने से बख्शेगा,
किसी का सजदा, किसी का रुकू, किसी की खिदमत, किसी की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आएगी और अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। नमाजों के पाबंद बने रहना, ज़कातों को अदा करते रहना, अल्लाह मालदार कर दे ज़कात अदा करते रहना, हज बैतुल्लाह अदा करते रहना, माँ बाप की खिदमत करते रहना, बड़ों का अदब करते रहना, पड़ोसियों का हक अदा करते रहना, उस्तादों का हक अदा करते रहना और शागिर्दों का हक अदा करते रहना। इसी तरीके से औलाद का, छोटी औलाद का हक अदा करते रहना, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना। लेकिन सारे अमाल के साथ साथ, नमाज की पाबंदी के साथ साथ, रोजे की अदायगी के साथ साथ, हज और ज़कात की अदायगी के साथ साथ अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अम्मी का नाम क्या था? अम्मी का अजीजन अजीजन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लोग नए मॉडल के नाम, मॉडल के वही जो फिल्मी स्टारों के, फिल्मी हीरो के होते हैं, वो उन्होंने लोगों ने, बच्चों ने अपने बच्चों के रखने शुरू कर दिए। और पुराने इन नामों को अगर बता दो किसी को, क्या भाई क्या रख लो, बोले हबीबुल्लाह। बोले यार ये तो बड़ा पुराना नाम है मौलाना, यार क्या बता दिया तुमने। बोलो भाई, तो नाम आजकल के बड़े अजीबो गरीब, बड़े अजीबो गरीब। बहुतों ने तो कुछ न देखा ना सुना, गुड्डू ही रख दिया। क्या रख दिया? गुड्डू। अब गुड्डू कब तक रहेगा गुड्डू? अब 2 महीने का गुड्डू, 4 महीने का गुड्डू, 6 महीने का गुड्डू, साल भर का गुड्डू, 10 साल तक गुड्डू। अब हो गया 50 साल का, तो क्या गुड्डू ही रहेगा वो? तो गुड्डू तो 2-4 दिन का ही गुड्डू है, फिर बाद में गुड्डू का रहा। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, नाम रखो, मानादार नाम रखो, अच्छे नाम रखो, प्यारे नाम रखो, ऐसे नाम रखो जिनका ताल्लुक सहाबा के नाम से हो, जिनका ताल्लुक खातून जन्नत के नामों से हो, जिनका ताल्लुक अज़वाज मुताहरात के नामों से हो। अजीजन नाम बहुत प्यारा नाम है। अजीजन के माना ही प्यारी है। अजीज हो गए तो माना प्यारी। अजीजन के माने प्यारी। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, और कैसे बना? ये अजीज से बना, ये हमारे अजीज हैं। क्या मतलब? प्यारे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं। तो अजीज रिश्तेदारों को, खानदान वालों को कहा जाता है, उसी से अजीजन है, प्यारी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नाम का असर साहब पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपने रहमो करम से प्यार ही अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह आज की इस फातिहा की बदौलत, हम सब की हाज़िरी की बदौलत, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम के आने की बदौलत, अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदा माजिदा मरहुमा अजीजन बेगम की मग़फ़िरत फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सबको अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अख़लाक़ हसना की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अक़वाल सादिक़ा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए, पक्का सच्चा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बंदे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिरो दअवाना अनिल